Okay, so finally, very good morning to all of you and welcome back. So here we are on air again. Huh? And the slow trickling in process goes on. I can see in my, as you know that I am logging from two devices. One is the laptop which actually helps me in seeing the messages. कि मोबाइल तो उल्टा हो जाता है ना, तो मैसेजेस उल्टे तरफ आता है, उसके लिए तो फिर मुझे बार-बार पीछे जाना पड़ेगा. So therefore, I have the laptop for the messages and the mobile is used for the transmission. And that is something that you are all aware by now. Nothing new, I mean. है ना? चलो. So good morning messages from Arav, Aditya, Priyank, Hardik. Thank you and good morning to all of you. Okay. We were in the middle of graphs, है ना? और ग्राफ पे आज चर्चा चलता जाएगा. लोगों ने इलेक्शन के टाइम चाय पे चर्चा को फेमस कर दिए थे, तो अभी हम लोगों के ग्राफ पे चर्चा के टाइम है ना? So we'll be mainly discussing on graphs today. Good morning, additionally from Saurav as well. So this trickling in goes on for at least a minute or 2-3 minutes. Yesterday we were discussing on graphs of uniform motion, positive velocity and negative velocity. I think that's where probably we ended. I don't think we did acceleration. Sir, we are on uniform negative acceleration VS graph. एक्सेलरेशन हो गया था. अच्छा, एक्सेलरेशन का VS ग्राफ का कुछ बचा था. हाँ, ठीक है. Negative acceleration. अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो चुका था. हाँ. Yes. चलो, ठीक. So let's start with that negative acceleration only. वो भी I think शुरू वाले तो हो ही गया था. तो let me first of all start by drawing those headlines or the headings. है ना? तो XT मैं जल्दी कर देता हूँ. ST LT BT speed time, acceleration time, the velocity displacement, I think that would be good. Your velocity distance, your speed displacement or speed distance. वैसे तो और भी है, but I think इतना ही बहुत है. I think this is good enough for us to understand the nature of motion on graphs. हम लोग negative acceleration की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अभी तक एक चीज किया था, is that we had taken initial velocity to be 0. Remember? ठीक है? Our heading was that initial velocity was 0 and acceleration is negative. तो हम लोगों ने बाकी तो कर लिए थे. VS ग्राफ बचा था. तो देखो कोई सा भी ग्राफ होगा, इट्स अल्टीमेटली मैथमेटिकल है. तो VS ग्राफ, ठीक है ना? What I would suggest is that why don't we begin by you sending the answers. उससे ना थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा और मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि कौन क्या सोच है ना. तो कैन यू बिगिन बाय सेंडिंग द ग्राफ टू दैट सेम नंबर 9555 वाला जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है? एंड देन वी विल start discussing. VS graph for negative acceleration, initial velocity 0. तो ग्राफ का फॉर्मेटिंग कैसे होगा? फॉर्मेटिंग तो वही है, b square is equal to u square. तो u तो 0 है, लेकिन इस केस में 2as होगा विद माइनस. ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये नेगेटिव है. So that is the thing that you have to like take care of. यानी बेसिक नेचर ऑफ द ग्राफ जो होगा वो तो s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर ही होगा. नेचर ऑफ ग्राफ तो यही होगा, एंड दैट इज s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, है ना? तो बाकी स्पेसिफिक ग्राफ के लिए जो है you can send, it would be good. Okay, I already have one answer from Arav.
अरे बच्चों तुमने ऐसे जूम करके भेजा है ना कि मुझे समझ में नहीं। ओके, आदित्य has also given. Okay, Aditya Bhatia has also sent. Aditya bete, you have drawn actually two graphs. You've drawn two graphs actually, bete. Two तो नहीं होगा ना? सर ब्लैक और ब्लू किया हुआ है. ब्लैक इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ब्लू इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अच्छा वो तो actually वो मैंने भेज दिया. हाँ मैं देख रहा हूँ. सौरभ ने भी भेजे बेटे. सौरभ बेटे एक ही डिस्प्लेसमेंट पे दो वेलोसिटी आ रहा है तुम्हारे ग्राफ के हिसाब से, इसलिए मैं ग्राफ मंगवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहीं पे गड़बड़ होता है. प्रथम ठीक है. सर एक और बार भेजा, मेरा देख लो. कौन बोल रहे हो बेटे? सर एक बार मेरा ही बता दीजिए. सर आरव. अच्छा ठीक है. अरब इट्स ओके. सर आदित्य भाटिया ठीक है सर? आदित्य भाटिया ने भी भेजे हैं. आदित्य तुम्हारे पे ही मैं कमेंट कर रहा था कि लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है. नहीं बेटा आदित्य थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि तुमने पॉजिटिव. अच्छा अच्छा नहीं, तुमने तो दो अलग अलग ग्राफ पे इकट्ठे बनाए ना, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन नेगेटिव एक्सेलेरेशन इकट्ठे बनाए. चलो ठीक है, आई थिंक इट विल बी ओके, चलेगा. प्रियंक ने भी भेजे हैं. ठीक है. यथार्थ के भी ठीक है. चलो देखो थोड़े थोड़े मिस्टेक्स है कई जगह पे, तो लाइक लेट मी पॉइंट दैट आउट सो दैट यू आल्सो नो. पहली बात तो ये हो गया एस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर टाइप का ग्राफ. बाकी साइन का हमें ध्यान रखना है ना. तो एस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर वैसे तो ग्राफ ऐसे हो, क्योंकि ये एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर टाइप का ग्राफ. तो दिस इज एक्चुअली लाइक दिस. अगर वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता तो इस टाइप का ग्राफ है ना, तो ये वाला ग्राफ हो. लेकिन इस बार एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो देयरफॉर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव की तरफ जाएंगे, है ना. तो यानी ऐसे वाला हो. लेकिन एक चीज बताओ, वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी अगर ऐसे रखता तो पॉजिटिव होगा, यानी आवर ग्राफ विल बी दिस वन. ठीक है ना. तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए वो ये वाला बनेगा. ठीक है. I hope you are getting the analysis. So this will be typically the graph that we are going to get. क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा. दैट्स द पॉइंट. अच्छा अब आ जाओ V और L. L तो डिस्टेंस है, वो तो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको इधर स्वैप कर देंगे, यानी बाकी तो सब सेम ही होगा. ये ऐसे, ठीक है ना. सो दैट्स typically what's going to happen. नेक्स्ट स्पीड. अब देखो स्पीड भी तो नेगेटिव नहीं होगा ना, पॉजिटिव होगा. और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो देयरफॉर ये ग्राफ को स्वैप करा दें ये वाले, यानी ये ऐसे हो. और ये स्पीड और डिस्टेंस दोनों ही पॉजिटिव होगा, है ना, तो ये ग्राफ जो है ऐसे. तो these are some of the minor variations that are going to happen as far as graph is concerned for negative acceleration. ठीक है. एक बार अच्छे से पूरा सेट चेक कर लो. Now our actual battle for graph begins. These were the basics. कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या असर होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या असर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब कुछ हमने इंक्लूड कर लिया. अब हम असली ग्राफ पे चलेंगे, यहीं से एक्चुअली ग्राफ का जर्नी स्टार्ट है. ठीक है ना. एंड दैट इज, लेट्स से वी टेक u पॉजिटिव एंड a पॉजिटिव. सो u also positive and a also positive. Then what will be the nature of the graph? Go ahead. Is for positive acceleration and positive initial velocity. Let's not prolong it. Okay. First of all, because it was saying that initial velocity is positive, यानी
एसटी ग्राफ में इनिशियली कुछ स्लोप से स्टार्ट, कल जो हमने बनाया था उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो देयरफॉर इनिशियल स्लोप 0 था, तो ग्राफ एकदम ऐसे स्टार्ट हुआ, और इस बार ग्राफ थोड़ा ऐसे स्टार्ट, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी को एकोमोडेट करना, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कल ऐसे बनाया था, आज हम ऐसे बनाएंगे, यानी देयर इज अ इनिशियल एंगल आल्सो, यहाँ पे भी एक एंगल है, तो अगर मान लो कुछ थीटा लिखते हो तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? So u यानी initial velocity will be equal to what? The tan theta. That is a particular piece. तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा? सेम चीज होगा, क्योंकि u पॉजिटिव a पॉजिटिव, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई अंतर, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, तो देयरफॉर एज यू से इट विल बी द कार्बन कॉपी, यानी वही थीटा इसमें भी हो, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ तो आसान है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोपिंग अपवर्ड्स, यानी u ये हो गया और ये, और इस बार अगर कुछ फाई होता है यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा इक्वल टू tan फाई, ठीक है? सो दैट्स योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, सिंपल है। इसके बाद तो स्पीड टाइम, दिस टाइम दी यू नो ग्राफ कैन बी कॉपीड इनटू स्पीड टाइम, व्हाई? कभी भी वेलोसिटी नेगेटिव हो ही नहीं, तो वेलोसिटी और यू नो स्पीड वाले ग्राफ में कब अंतर होता है ना? अगर वेलोसिटी किसी हिस्से में नेगेटिव होता है तब अंतर होता है, और यहाँ पे तो ऐसे नेगेटिव हो ही नहीं, तो देयरफॉर लाइक दिस, सो कार्बन कॉपी ऑफ दैट, यानी AT ग्राफ, A is a constant, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी अब हम लोग का असली लड़ाई शुरू होता है यहां से, VS ग्राफ्स। सो व्हाट आई वांट इज दैट VS वाला ग्राफ जो है, VS वाला जो ग्राफ है, दैट पॉसिबली somebody can send, ठीक है ना? VS वाला ग्राफ भेजो तो मुझे आइडिया लगता है हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। Yes, VS graph is what I'm looking forward. Okay, Priyank has already sent. That's right. ठीक है, on right trend है. Mind you, the basic nature of the graph will not change as the previous one, but हमें थोड़ा minor adjustment करने पड़ेंगे. क्यों? Because that's what the graph is requiring. Okay, ना आरव ठीक नहीं हुआ, आरव फिर से ट्राई करो. आरव ठीक नहीं हुआ, फिर से ट्राई करो. Priyank, it's okay. Others also start sending a little bit so that we can interact, and then I will also come to know how many mistakes हो रहा है. I can moderate the discussion in that case. सर VS वाला ग्राफ भेजना है, सारे भेजने हैं अभी? ठीक है, अब मुझे पता चल गया, मैं तो सिर्फ आरव की बात कर रहा था. कृतिका, तुम्हारे कर्वेचर गड़बड़ हो गया, कर्वेचर का नेचर गड़बड़ हो गया है ना, तो थोड़ा सा वो देख लेना. अच्छा देखो, यू नो लेट मी अप्रोच द ग्राफ नाउ. हमारे ग्राफ एक्चुअली है क्या? हमारा ग्राफ एक्चुअली ये है. तो अगर u 0 होता है तो ये टर्म गायब हो जाता है ना. So if u is equal to 0, then s is proportional to v square का ग्राफ. तो हमने ऐसे बनाया था पिछले बार. एक्चुअली ग्राफ तो ऐसे होता है ना, s proportional to v square का ग्राफ तो खैर ऐसे होता है, लेकिन हमारे इस केस में नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना, वेलोसिटी. तो इससे हमने इस पार्ट को मिटा दिया. ये मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, इस बार की बात नहीं कर. ठीक है. अच्छा, अब आ जाओ, अगर ये u स्क्वायर टर्म तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी तो एक कांस्टेंट है, तो वो इधर आ रहा है, यानी ये हो गया माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर.
तो यानी ये जो ग्राफ होगा ना, अगर मैं फिजिक्स भूल जाऊं, और अगर मैं मैथमेटिक्स का ग्राफ बनाऊंगा, पता है कैसे होगा? ये सर ये एलिप्स होगा ना? एलिप्स नहीं बेटे, ये एक पैराबोला होगा, जो स्क्वायर है ना, एक डिग्री 1 और एक डिग्री 2, वेरिएबल बोलते v है और s है, तो एक का डिग्री 1 डिग्री 2, तो ये टिपिकली एक पैराबोला ही होता है, ठीक है ना? तो देयरफॉर आवर पैराबोला विल बी एक्चुअली लाइक दिस। ये एक्चुअली टिपिकली इसका आंसर है। हमारा जो पैराबोला होगा ना, वो ये है। मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस इज द आंसर, बट मैथमेटिक्स हमें होलिस्टिक आंसर देता है। फिजिक्स वाले पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इसका एक पार्ट को लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इज द पॉइंट हियर, मुझे इसके एक पार्ट को लेना पड़ेगा। कौन सा पार्ट? ना देखो, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इसको तो गायब कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं, यानी इसको भी गायब। यानी ग्राफ आप सिर्फ ये रहेगा, दैट्स इट। अभी मैंने देखा 2-3 जने का करेक्ट भी आया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना? तो देयरफॉर दिस इज नाउ द ग्राफ। देख लो अच्छे से। अब देखो v और l तो कॉपी हो जाएगा, सो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, q, तो ये भी कॉपी हो जाएगा, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट सब कॉपी। क्यों? क्योंकि इस बार सब कुछ पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होता है जब कोई चीजें नेगेटिव होता है, तो वो डिस्टेंस में, स्पीड में कहीं ना कहीं उसका एक असर होता है, बट एटलीस्ट नॉट टिल नाउ। सो लेट्स पुट अ स्टॉप। नाउ कम्स x वर्सेस t। तो मैंने पहले बोला इज दैट x वर्सेस t यानी पोजीशन टाइम ग्राफ तो पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही बना। तो मैं क्या करूंगा, जो बंदा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये मैंने बार बार बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बंदा ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका पोजीशन में कोई अंतर नहीं है ना। तो देयरफॉर दिस ग्राफ विल बी कॉपीड, देन अनदर वन लाइक दिस, अनदर वन लाइक दिस। तो ये a b c, a is somebody who is starting a little ahead, b is who is starting at the origin, and c is who is starting a little behind. That is the, or rather these are the three types of different cases. Okay. Now u negative, a positive. Now here the important graph starts. यहां से तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अच्छे से। तो therefore इस बार u negative, a positive इसका ग्राफ, ठीक है? चलो गो अहेड, यहां से देखना असली ग्राफ का फ्लेवर स्टार्ट। एक दो और बनाएंगे, बट दिस इज वेयर एक्चुअली द फ्लेवर ऑफ ग्राफ स्टार्ट्स। फाइन, चलो गो अहेड। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एसटी ग्राफ। इस बार ध्यान रखना, इस बार वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव, ये देखो, यानी अगर टिपिकली सिचुएशन देखो तो पता है कैसा है, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और ये अगर फ्रंट साइड है यानी पॉजिटिव साइड है, तो एक्चुअली बॉडी इस तरफ स्टार्ट हुआ, क्यों? नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इधर गया है लेकिन एक्सेलरेशन उधर है, तो यानी अल्टीमेटली तो मुड़ के उधर ही जाना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज इनिशियल वेलोसिटी है -10 और एक्सेलरेशन मान लो है +5, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी -10 है और एक्सेलरेशन +5 है, तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी -10 लेकिन एक्सेलरेशन +5 होने के कारण क्या होगा? 1 सेकंड बाद हो जाएगा -5 और उसके बाद 1 सेकंड बाद होगा 0। दैट मींस द बॉडी विल स्टॉप समवेयर, और फिर उसके बाद वेलोसिटी हो जाएगा +5, फिर +10, फिर +15, फिर +20 and so on. So ultimately it will go forward. Why? Because acceleration is positive out here. ये start negative से होगा, ये देखो, है ना? Start negative से होगा. That is what the problem is. मतलब negative मतलब velocity negative से start. So therefore initial velocity being negative, तो ये ऐसे start, लेकिन ये मुड़ेगा और मुड़ के ऐसे जाएगा, ठीक है? Now you might say ये मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करें? बिल्कुल मैथमेटिकली हो सकता है। देखो S इज इक्वल टू QT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना? तो होता क्या पता है,
कि जब टी का वैल्यू कम होता है ना, और यू अगर नेगेटिव है और टी का वैल्यू कम होता है, तो देखना टी डोमिनेट करता है टी स्क्वायर से। ये क्या मतलब है, जरा सोचो, अगर टी का वैल्यू छोटा है, जैसे मान लो टी का वैल्यू सपोज हाफ है, तो टी तो हाफ हो गया, टी स्क्वायर क्या होता है, हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। इसलिए शुरू में ये वाला टर्म डोमिनेट करता है शुरू में, लेकिन बाद में तो ऑब्वियसली टी का जो वैल्यू बढ़ता है तो ऑब्वियसली टी स्क्वायर डोमिनेट्स है, तो देखो अल्टीमेटली तो यही डोमिनेट करेगा, यानी अल्टीमेटली तो पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, लेकिन शुरू में यू नेगेटिव होने के कारण ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा, यानी इनिशियली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। नाउ दैट इज द मैथमेटिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। बाकी फिजिक्स से तो बहुत मैटर क्लियर है ही है कि भाई देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो यानी पीछे तो जाना ही है थोड़ा सा, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के कारण पीछे जाके फिर वापस भी आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। So therefore, this will be typically the graph. यहाँ पे बॉडी थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस रेस्ट भी लेंगे, इंस्टेंटेनियस रेस्ट, मोमेंटरी रेस्ट, और फिर वापस एंड देन इट विल गो अहेड। That's typically what is going to happen. अच्छा, अब L versus T. Now here also there will be of challenges there. इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट इसको अभी नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। So therefore this time this is important. ठीक है, we'll come to that. Even this is also important. Even velocity वाले तो सारे important. अच्छा, velocity versus time, I think ये easy है। Initial velocity negative, फिर थोड़ी देर बाद velocity 0 हुआ है, ये देखो, और फिर बाद में पॉजिटिव, आई थिंक दैट्स ओके। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इस तरीके से, ये तो हो गया वीटी ग्राफ। अब आ जाओ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड के साथ दिक्कत क्या होता है कि स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जितना नेगेटिव होगा उतना ही स्पीड पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर जितना नेगेटिव वेलोसिटी है उतना ही स्पीड पॉजिटिव होगा, देयरफॉर स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा ऐसे और उसके बाद ऐसे। यानी समझो, इन जनरल वेलोसिटी ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर स्पीड टाइम में करना है तो क्या करेंगे ना, जो नेगेटिव वाले हिस्से है उसको जस्ट मिरर रिफ्लेक्शन करके पॉजिटिव बना दो, जो पॉजिटिव वाले हिस्से है उनको रिटेन करो, तो देयरफॉर ये वाला तो रिटेन हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो दिस इज व्हाट मिरर इमेज, यानी इस हिस्से का तो मिरर इमेज बना दो ऐसे, और बाकी जैसे रहने दो, क्योंकि बाकी तो पॉजिटिव वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस टाइम। तो ये हो गया स्पीड टाइम, L डॉट T, स्पीड टाइम, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन टाइम वेरी इजी, बिकॉज़ दैट्स लाइक अ कांस्टेंट, ये तो हो। अब यहां से स्ट्रगल स्टार्ट होता है, इसलिए काम करो, ये दोनों ग्राफ्स मुझे बना के दे, एक LT और एक VS। खास करके LT का एक्सपीरियंस इस बार थोड़ा सा अलग होगा, है ना, VS का तो ऑब्वियसली अलग होगा। चलो गो अहेड। कौन कौन से भेजना? बस ये दोनों स्टार वाले, LT और VS, जल्दी भेजो। ओनली LT एंड VS, बाकी फिर फॉलो अप करेंगे, बट पहले इसका तो भेजो। As I said, XT यानी पोजीशन टाइम ग्राफ तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हेल्प से ही बना, बस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाला बना दो और फिर ऊपर नीचे या दाएं बाएं डिपेंडिंग ऑन की एक्स किस एक्सिस में प्लॉट किया है। तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट है, तो यानी पोजीशन, तो देयरफॉर ऊपर नीचे, यानी इसको पहले बना लो, ये वाला, फिर एक ये वाला भी बनेगा और फिर एक ये वाला भी बनेगा, तो ये A B C। जो बंदा थोड़ा आगे से स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा पीछे आया और फिर चला गया, वो हो गया A। B ओरिजिन से स्टार्ट करके थोड़ा पीछे गया और फिर चला गया, और C है स्टार्ट पीछे से हुआ था और थोड़ा पीछे गया, ये देखो स्टार्ट पीछे से हुआ, देखो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और थोड़ा पीछे गया, देखो और ज्यादा नेगेटिव हो गया, और थोड़ा पीछे गया, फिर वापस मुड़ के फिर अल्टीमेटली आगे चला। So these are the three typical experiences of a body starting ahead of the origin, at the origin and behind the origin. ठीक है, तो that's how the graph will. इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर तुमने बना लिया तो सुकून से रहो, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने में कोई देर नहीं लगती, उसी को ऊपर नीचे या तो जब जरूरत पड़े तो दाएं बाएं करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो go ahead. So like now it's भेज दिया।
LT and VS. तो मैं देखता Yes, हूँ sir. कुछ लोगों ने भेजे हैं. आदित्य asked, but if ग्राफ में स्पीड 0 एक टाइम पे इंस्टेंट कैसे हो सकता है? देखो, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था, आई होप कि तुमने उसको फॉलो किया हो. मैंने एग्जांपल में क्या बोला? सपोज इनिशियल वेलोसिटी -10 है, यानी पीछे की तरफ 10 है, उसी को -10 बोलते हैं. और मान लो एक्सेलरेशन +5 है. एग्जांपल ले रहा हूं, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा? u + 80 तो यानी -10 + 5 × t यानी 1, तो यानी -5, यानी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी -5. और उसके 1 सेकंड और बाद यानी टोटल 2 सेकंड बाद क्या होगा? तो -10 + 5 × 2 यानी +10, यानी 0 हो गया. यानी इस बार का एक्सपीरियंस कैसे होगा? U नेगेटिव और A पॉजिटिव का एक्सपीरियंस, कि जाएंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट तो पीछे से करेंगे जाना, लेकिन कहीं ना कहीं टर्न बैक करके वापस आएंगे. सिमिलर टू दिस वन, ये भी तो ऐसे ही किया. इसका भी तो इनिशियल वेलोसिटी अप था पर एक्सेलरेशन डाउन था, ऑपोजिट था. इसलिए क्या हुआ? गया और एक मोमेंटरी रेस्ट से फिर वापस आया. मोमेंटरी रेस्ट होता है, ऐसे नहीं कि वहां जाकर रुक गया, थोड़ा सा आराम कर रहा है, रुका देन ऐसा थोड़ी है. इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग गोइंग अप एंड देन कमिंग डाउन विद अ मोमेंटरी इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट द टॉप. तो दैट्स लिटिल इजी टू विजुअलाइज. यहीं पे टॉप पे कहीं ना कहीं मोमेंटरी रेस्ट पे हुआ, तो ये समझ लो कि उसी का हॉरिजॉन्टल वर्जन. कोई ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है सोचने, ठीक है ना? सर एक बार मेरा देख लो. Okay, Palak has also given an answer, and there is half parabola in first quadrant on y-axis. Okay, now this is half parabola business is little difficult to fathom what exactly you meant, but चलो कोई नहीं. Okay, आरव तुमने जो LT भेजे हैं उसमें बताता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है. आदित्य के साथ भी यही प्रॉब्लम है. हितार्थ has drawn it correctly. प्रियंक LT का है ना. तो मेरे पास 4 आंसर्स आए, उसमें सर VS सही है मेरा. तीन में तो कुछ ना कुछ गलती है. सर मेरा VS सही है. एक सेकंड, पहले मैं LT का देखूं. VS में नहीं है था, तो VS सही नहीं है. तो मेरा देख. तो एक तो ना तुम लोग कटा कटा भेजे हो, तो इसलिए प्रियंका तो VS सही है. सर मेरा देख. प्रियंका VS सही है, लेकिन LT में गड़बड़ है, ठीक है ना? सर हितार्थ के VS कैसे बनाया समझ में नहीं आ रहा मुझे. नहीं, हितार्थ VS गड़बड़ है, और तुम्हारा LT तो समझ में ही नहीं आया. आदित्य भाटिया VS इज इनकम्प्लीट, और LT तो शायद तुमने भेजा नहीं. अच्छा नहीं, LT भेजे लेकिन वो गलत है. ओके आरव, तुम्हारा एक लास्ट देख लेता हूं मैं. VS तो गड़बड़ है, LT में भी वही गड़बड़ है जो कि आई थिंक किसी और ने भी किया. चलो एक चीज बता देता हूं मैं. देखो, मैं जो ग्राफ देख रहा हूं, मैं उसके बेसिस पे एक तो कंक्लूजन बताता हूं. अभी और आंसर्स आ रहे हैं, बट देन कई बार ना एक लिमिट के बाद, एक स्टेज के बाद देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बहुत सारे आंसर चॉइस कैसे देखें. अच्छा LT में वही गड़बड़ है बेटे प्रियंक. अच्छा सुनो, LT कई लोगों ने ऐसे बनाया, जरा देखो. तो कई लोगों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मिरर इमेज बना दिया, ठीक है, जहां जहां नेगेटिव. So what has been done by few is that, quite a few मुझे लग रहा है, मैंने अभी देखा चेक करके, is that कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जहां पे नेगेटिव है उसको मिरर कर दिया और बाकी रहने दिया. This is what has been done. अब मैं बताऊं उसमें दिक्कत क्या है. तो उन्होंने क्या किया कई लोगों ने, कि ये जो पार्ट है नेगेटिव है, इसको मिरर इमेज कर दिया ऐसे, और ये जो है इसको रहने दिया. Now tell me what's wrong in this. बताओ जरा, मैसेज करके बता दो. सर डिस्टेंस 0 नहीं होता. ओके, एक तो हो गया कि डिस्टेंस 0 कैसे हो गया बीच में. चलो और कुछ. सर डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता ना. डिस्टेंस डिक्रीज भी नहीं हो सकता. डिस्टेंस जो बन गया वो बन गया. तुम अगर 10 मीटर आगे गए तो डिस्टेंस 10 हो गया तो 10 हो गया. अब वो 10 से कभी कम नहीं हो सकता. लिमिट से नहीं पीछे आ गया, तो पीछे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं होगा. अगर वो 2 मीटर पीछे आता है ना, मान लो 10 मीटर आगे गया तो डिस्टेंस 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 10 है. अगर 2 मीटर पीछे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट भले ही 8 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 12 हो जाएगा. वो हमेशा इंक्रीजिंग मोड में रहता है. तो देयरफॉर ये जो मिरर इमेज कॉपी वाला जो सोच रहे हो, वो पता है कहां तक होगा? सिर्फ यहीं तक होगा, ये इतना पार्ट. तो देयरफॉर यहां तक ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं. पर इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा आगे की तरफ है. यहां से एक्चुअली वेलोसिटी पॉजिटिव हो चुका आगे की तरफ. तो देयरफॉर इस पूरे को, यानी यहां से लेके पूरा ये, इसको उठा के यहां पे डाल. तो देयरफॉर
ये पार्ट जो है ना एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर, और बाकी जो गलत वाला पार्ट है मैं उसको मिटा के अब ठीक कर, ठीक है। तो देयरफॉर आई विल करेक्ट इट एंड नाउ इट इज ओके, ठीक है। अच्छा, वीएस का ग्राफ मैंने देखा तो वीएस के ग्राफ से एक जगह करेक्ट थे, आई डोंट नो हु दैट वाज, क्योंकि इतने सारे आए कि लाइक अभी चेक करना बड़ा मुश्किल है। वीएस का ग्राफ में बताता हूं, मैंने देखा होगा सब कुछ मिटा दी, ये नहीं मिटा। उसके पीछे रीजन ये कि इस बार भी आर्गुमेंट में वही यूज करने वाला। कैसे देखो, पिछले बार मैंने बोला कि लाइक एक्सेलरेशन नेगेटिव था, इस बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओनली कंसर्न इज दैट इस बार ग्राफ कैसे बन रहा है, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो u स्क्वायर इधर आएगा। अच्छा, u चाहे पॉजिटिव हो या u नेगेटिव हो, u चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इधर आके तो नेगेटिव ही बनेगा। यानी s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर वाला ग्राफ था अगर u 0 होता है तो, पर u का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो माइनस हो गया, यानी थोड़ा ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। याद करके देखो, इस तरीके के ग्राफ मैंने पहले भी बनवाया कि अगर शिफ्ट होता है तो कैसे शिफ्ट होता है। तो देयरफॉर इस बार का ग्राफ हो गया ऐसे, ये मैथमेटिक्स का ग्राफ, ये जो है मैथमेटिक्स का ग्राफ। सर इसमें से कुछ मिटेगा नहीं? हाँ बेटे, इसमें से कुछ मिटेगा? हाँ उसी पे आ रहा हूं मैं, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का ग्राफ। अब मेरे क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, थोड़ा सा टिपिकल सिचुएशन समझो क्या हुआ था इस बार। इस बार इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव था, फिर थोड़ी देर बाद जीरो हुआ और फिर पॉजिटिव हुआ, तो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, मतलब नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद देखो पॉजिटिव हुआ, मतलब जीरो हुआ, और थोड़ी देर बाद पॉजिटिव बने पूरा चला गया। यानी पूरे मैथमेटिकल ग्राफ में से, पूरे मैथमेटिकल ग्राफ में से मैं क्या करूंगा, ये वाला हिस्सा मिटा दूंगा, ये वाला, बस। ठीक है, देख लो बस मैं क्या करूंगा, ये वाला हिस्सा मिटा दूंगा, तो ये जो बाकी बच गया वो। अच्छा, अब इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह भी सोचो, डिस्प्लेसमेंट की तरह अगर सोचो तो क्या, और देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वो तो पता ही है, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज पता क्या, कि थोड़ी देर बाद मान लो -2 मीटर हुआ सब कुछ, वो और पीछे जाएंगे वापस भी आएंगे, यानी -2 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक बार नहीं 2 बार होगा। क्या देखो, सपोज कोई -2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो 2 बार होता है। कैसे, न जब बॉडी पीछे जा रहा है उस वक्त एक बार होगा, उस वक्त एक बार होगा, और जब बॉडी आगे जा रहा है उस वक्त एक बार और होगा, एंड दैट्स व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस केस। देखो, वही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ, यानी अब जाके पूरा ग्राफ प्लेस्ड हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, फिर वेलोसिटी जीरो हुआ एक जगह पे, और उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर वापस भी जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इधर जाके वापस आ रहा है तो इसके मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है ना, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार वापसी में, कभी जब एक बार और होगा, तो वही हो रहा है। जीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, और फिर आगे चला गया, नो इश्यूज, है ना। चलो अब आ जाओ तुम वेलोसिटी डिस्टेंस। वेलोसिटी डिस्टेंस ये भी चैलेंजिंग है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी डिस्टेंस को कैसे मैनेज करेंगे, देखो वेलोसिटी तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका पहला पार्ट तो पहले पॉजिटिव करेंगे। चलो भाई पॉजिटिव कर, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, और ये, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ उतना ही डिस्टेंस आगे जाके पॉजिटिव हो गया। इसके बाद क्या है ना, इसके बाद देखो वेलोसिटी का ग्रोथ ऐसे होगा, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में बिल्डअप होगा, तो वो तो डिस्टेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। बल्कि ग्राफ मुझे नहीं बनाना चाहिए था। अक्षत सेठ की ओके, अक्षत इज सेइंग कि मैथमेटिकल वाला एक बार दोबारा बता दोगे। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है तो ये ग्राफ, तो अगर s ये अगर टर्म नहीं होता है, और अगर ये इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s में u अगर जीरो होता है, ठीक है ना, तो ये ग्राफ होता है।
पर u नेगेटिव है, पर यहाँ पे जाके तो u स्क्वायर पॉजिटिव होता है माइनस, क्योंकि u स्क्वायर इधर जाके माइनस, तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए ग्राफ थोड़ा पीछे आ जाता है। तो देयरफॉर इस इक्वेशन का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ये हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ, ये वाले। लेकिन इसमें से मैथमेटिक्स तो पूरा कंप्लीट ग्राफ होता है, इसमें से तुमको वो वाला हिस्सा चूज करना है जो कि तुम्हारे फिजिक्स के सिचुएशन के हिसाब से परमिसेबल है, यानी अलाउड है, तो वही कर दो, फिर इसको मिटा दो तो यानी बाकी रह गया वही। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या हो गया, ये वाला हिस्सा तो मैंने कर दिया पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, तो इधर और यहां से ऑनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट आगे गया, तो देयरफॉर ये वाला ग्राफ जो है, क्योंकि इसके बाद तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया है ना, ये यानी यहां से लेके इसको पूरा सेक्शन को उठा के यहां डाल, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, यानी ए बी, ये ए ये बी, और बी से लेके ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बस उठा के यहां पुट कर, दैट्स इट। तो ये हो गया क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिस्टेंस का ग्राफ रेडी। ठीक है, चलो अब आ जाओ स्पीड, ये दोनों भी बनाओ जरा। चलो ये अब तो एक्सपीरियंस गेन कर लिया ना, अब उस एक्सपीरियंस के बलबूते अब ये दोनों बना के मुझे फटाफट भेजो, स्पीड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड डिस्टेंस, जल्दी भेजो, अब करेक्ट होने चाहिए, जल्दी करो। कुड यू एक्सप्लेन द VL ग्राफ? VL ग्राफ देखो मैंने क्या समझा, मैंने ये बोला कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो, उतने टाइम पे डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर मैंने इसको मिरर इमेज बना के इधर कर, और उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है ना, जैसे यहां से मान लो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आगे गया, तो वो 10 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस पे भी आगे है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा मैंने क्या किया, कट किया और उठा के यहाँ डाला, तो पूरे पैटर्न में अब एकदम फिट हो जाए। ठीक है, वह चेक करो। Saurav, I have already repeated, so I hope now it's okay. मैंने बोला था रिपीट करने के लिए। चलो, let me see if there are some answers coming up. Okay, some answers have already come up. कुछ dotted वगैरह भी आया है। Okay, ये प्रथम के आए हैं L versus T के कुछ ग्राफ। Okay, ये तो नहीं होगा ठीक। चलो, let me start now. Speed, देखो सर speed। एक बार मेरे देख लो, मैंने भेजे। Now this is really interesting है। चलो मैं देखता हूँ, अभी बताता हूँ, आंसर बताऊंगा तो टेलिंग। देखो पहली बात तो इस बार स्पीड, जैसे वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है इनिशियल, स्पीड तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, है ना, तो देयरफॉर स्पीड विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, यानी ये ग्राफ इधर चला गया। उसके बाद देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसके बाद नेगेटिव जाएगा, और फिर स्पीड रिड्यूसिंग मोड में 0 होगा, तो देयरफॉर ये वाला जो ग्राफ का हिस्सा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे आएगा। तो इस बार पता क्या हुआ, ये जो ग्राफ है ना, जो कि ए बी और फिर ये सी पॉइंट है और ये आगे डी पॉइंट, तो मैं एक्चुअल जो ग्राफ है ना, उसमें ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर आगे जाके इस तरीके से। इस बार क्या होगा, ये ए होगा, क्योंकि देखो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी नीचे नहीं जा सकता, स्पीड नेगेटिव नहीं होगा तो नीचे नहीं जा सकता, तो ए, फिर इधर बी आएगा, फिर यहीं पे सी आएगा, और फिर आगे डी। जरा ध्यान से देखो, इस बार ग्राफ पता है कैसे हो रहा है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और उसके बाद आगे।
बस ये चेंज आ, यानी यानी ये वाले हिस्से को मैंने ऊपर कर दिया, बस that's it. ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, बस एक छोटे से हिस्से को मैंने चेंज कर दिया एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर गिविंग मी द आंसर. Okay, lastly about the speed and distance graph. इस बात ध्यान रखना, ना स्पीड नेगेटिव हो सकता है और ना ही डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, तो therefore ये जो चीज सामने पीछे जा रहा था डिस्प्लेसमेंट के कारण पीछे जा रहा था, वो चीज अब आगे जाए यहां, इसलिए ए और फिर बी. उसके बाद देखो ये स्पीड जो है बढ़ रहा है ऊपर और आगे की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ेगा. यानी ये ग्राफ अब ऐसा, यानी ए बी ये वाला सी पॉइंट और फिर ये हो जाएगा D. ये तो आगे जा रहा है. अब जरा कंपेयर करो. See, these are not very easy but not very difficult also, just a matter of visualization. ठीक है, देख लो अच्छे से. सर Okay. सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मिरर इमेज कौन सा एक्सिस से लेकर करनी है. जैसे अगर स्पीड के लिए y एक्सिस से या फिर x एक्सिस से, डिस्टेंस के लिए कौन सा एक्सिस से. देखो वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा एक्सिस में तुमने क्या रखा है. मेन मुद्दा क्या है, सब मेन मुद्दा इज दैट कि डिस्टेंस और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है ना, तो देयरफॉर जहां जहां डिस्टेंस और स्पीड नेगेटिव है वो हटा दो. ये हट जाएगा, क्यों, यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, ये हट गया, क्यों, यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव है, ये हट गया, क्यों, यहाँ पे स्पीड नेगेटिव आ गया. यानी जो ग्राफ होगा वो सिर्फ इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब फॉलो करो इसका नेचर. नेचर कैसे, मैं देखो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता था तो इसलिए देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से लेके, मतलब इनिशियल स्पीड से लेके, और फिर बाद में जीरो हुआ. लेकिन ये तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इसलिए डिस्टेंस तो होगा नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव होगा. तो इसलिए ये ग्राफ इधर आ, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है यहाँ पे उतना ही एक्चुअल में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो इसलिए वो यहाँ पे आ. ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ अगर तुम बी से ऑनवर्ड अगर वापस आ रहे हो, तो बी से ऑनवर्ड अगर वापस आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है एक्चुअली, इन द सेंस कि जैसे मान लो पहले -10 था, अब -8 -6 इस तरीके से, तो यानी बढ़ ही रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस भी बढ़ेगा. तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, BCD वाला जो हिस्सा है, BCD वाला हिस्सा, उसको इसलिए मैंने यहाँ पे लेके आ गया कि वो भी उतना ही बढ़ेगा, और वेलोसिटी तो एक लेवल पे वही है. तो देयरफॉर देखो कैसे ग्राफ BCD, तो वो जो पूरा BCD वाला हिस्सा है उसको ऐसे कॉपी करके रख. That would be the typical graph of everything that I've drawn. तो ये हो गया स्पीड डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया स्पीड और डिस्टेंस. Is that comfortable now? देख लो अच्छे से. चलो, so therefore finally we have now managed to do for initial velocity negative and acceleration positive. अब एक काम करना इसी के ऊपर मैं एक दूंगा क्वेश्चन घर के लिए, और वो है उल्टा कर लो. इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव. ठीक है, तो इसको एज ए होमवर्क रखो, और ये सारे ग्राफ्स दोबारा बनो, सारे बनो. आई थिंक थोड़ा सा और हैबिट बनेगा, प्रैक्टिस बनेगा, दिमाग चलने लगेगा कि एग्जैक्टली ग्राफ बनाना कैसे. ठीक है, क्योंकि मैंने जो आज देखा इज दैट कि 100% ग्राफ्स अच्छे से नहीं हो रहा. तो ठीक है, थिंग्स आर हैपनिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है, थिंग्स आर हैपनिंग वेल आल्सो, बट 100% ठीक से नहीं हो रहा. इसलिए आदित्य has asked कि इसमें डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. कहाँ डिस्टेंस डिक्रीज हुआ बेटे, ये देखो डिस्टेंस 0 से स्टार्ट हुआ है, डिस्टेंस बढ़ा, अभी भी तो डिस्टेंस बढ़ ही रहा है. डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है, कहीं पे डिक्रीज नहीं हुआ है ना. तो डिस्प्लेसमेंट पीछे गया था, देखो ये डिस्प्लेसमेंट था इसलिए पीछे गया था, देखो ए से बी गया फिर वापस, बट यहाँ तो आगे गया. देखो सब कुछ, डिस्टेंस कहीं नहीं डिक्रीज हुआ. स्पीड तो डिक्रीज कर सकता है, स्पीड में कोई दिक्कत.
स्पीड इज अ क्वांटिटी विच कैन डिक्रीज, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। चल ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स आए हैं, बट एज आई सेड दैट, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और ग्राफ दूंगा आज, इसको भी तो आज शायद पूरा तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट एटलीस्ट वी विल ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। और इस बार इतने सारे नहीं बनाएंगे, थोड़े से ही बनाएंगे, I mean, इतना भी जरूरत नहीं है डिटेल जाने का। एंड दैट इज अ बाउंसिंग बॉल। बाउंसिंग बॉल का जो ग्राफ है, दैट एक्चुअली मोर और लेस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ग्राफ। तो मैंने एक होमवर्क दिया है, ये सॉल्व करके रखना है, और अभी हम लोग बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अ बाउंसिंग बॉल। सपोज मैं कहता हूं कि एक बॉल को मैंने यहां पे रिलीज किया एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर, और आइडियल केस का मतलब समझो, आइडियल केस का मतलब ये हुआ कि अगर बॉल को 80 मीटर से ड्रॉप किया तो जाके फिर वापस 80 मीटर, फिर वापस 80 मीटर, फिर वापस 80 मीटर से, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने पहले ही बोला आइडियल केस, अदरवाइज मैं आइडियल केस लिखता ही क्यों? अगर यही हमेशा होता कि 80 से ड्रॉप करने से 80 पे वापस आता, फिर तो मैं कुछ लिखता ही नहीं, मैं बोलता बाउंसिंग बॉल। मैंने बोला बाउंसिंग बॉल आइडियल केस, यानी प्रैक्टिकली तो खैर नहीं होगा। क्यों? तो प्रैक्टिकली ये रेजिस्टेंस है, फिर कोलिजन के टाइम भी कुछ लॉसेस वगैरह होता है, या फिर जो हिट करता है, तो लाइक देयरफॉर एक्चुअल में क्या होगा? ऐसे एक्चुअल में तो ये होगा, बट मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ। 80 से ड्रॉप किया, वापस 80, फिर ड्रॉप किया, फिर वापस 80, फिर ड्रॉप किया, आइडियल। ऐसे में कुछ ग्राफ्स बनाना है, सारा नहीं बनाना। जैसे एक तो XT बनाओ, चलो XT। अच्छा, ओरिजिन किसको लोगे ना? ओरिजिन यहां ले लो, दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, दिस ओरिजिन, तो उसी हिसाब से बना। XT बनाओ, ST बनाओ, LT बनाओ, ठीक है। LT बनाओ, XT, ST, LT, VT बनाओ, और एक VS बनाओ। ठीक है, गो अहेड। जो वैल्यूज चाहिए वो तो खैर आराम से निकल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लाइक इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वैल्यू आई हैव गिवन। 80 मीटर से देखना वैल्यूज थोड़ा ठीक ठाक है। कमेंट, आई मीन प्रियंका मेड कमेंट कि एसटी ग्राफ क्या साइन थीटा जैसे बनेगा? अच्छा, एक चीज और याद रखना इज दैट व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, आई विल रिपीट, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड मींस आई विल टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो देखो, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ग्राफ जब बनाएंगे तो हम बाय डिफॉल्ट अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके फिर बनाएंगे। सो आई थिंक दैट इज गुड एनफ इन टाइम start discussing the graph. Aryan has made a comment that is, क्या VT graph में should we show the ball having zero velocity at the moment of contact? Okay, देखो, चलो let me discuss this aspect because it is something that might clutter your mind. इसको मैं पहले clear करना चाहूँगा। देखो, हम collision को जो है ना instantaneous मानेंगे, यानी ऐसे नहीं कि यूं रुक गया फिर बाउंस किया, नहीं। जो टिपिकल बॉल्स में होता है वो नहीं करेंगे। जैसे एक कोई कॉस्को का बॉल ले लो या कोई ऐसे रबर का बॉल ले लो, इन दैट केस क्या होता है, अगर तुम बहुत स्लो मोशन में कैमरा चलाओगे ना, पता क्या होगा? अगर ये बॉल है मान लो, तो पता एग्जैक्टली क्या होगा? इधर ये बॉल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, देखना बॉल दब जाता है, फिर बॉल दोबारा अपना शेप को रिगेन करता है और फिर कांटेक्ट छूटता है। यानी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, देयर इज ए ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट, यानी ऐसे होने वाला। क्यों? ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट ओवर, अब बाउंस कर गए, तो इट इज अ स्मॉल टाइम इंटरवल। हम लोग आइडियल में ऐसे नहीं मानेंगे। हम आइडियल में क्या मानेंगे वो देखो, यानी बॉल टच हुआ और एकदम से वेलोसिटी पलट, ऐसे कैसे छोड़ दो, ऐसे कैसे वाला छोड़ दो। आइडियल में हम ये लेते हैं कि एक मोमेंट पहले, मान लो वेलोसिटी है सपोज 5 मीटर पर सेकंड, एक मोमेंट पहले
मान लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स था, तो एक मोमेंट बाद वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स. दैट इज व्हाट वी मीन बाय आइडियल कोलिजन. तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, एंड दैट इज कि क्या जीरो वेलोसिटी? नो, जीरो वेलोसिटी नहीं. कैसे वेलोसिटी होगा? -5 एंड देन तुरंत यानी इमीडिएटली +5 बाउंसिंग, ऐसा करके बाउंसिंग में ऐसे ही होगा. ठीक है, चलो नाउ गो अहेड. प्रियंक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वाला गड़बड़ है, बाकी पोजीशन वाला सही है. और ये मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ग्राफ तो एक ही जैसे होना चाहिए. मैंने बोला ना अभी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ एग्जैक्टली मैचिंग होता है, सिर्फ ऊपर नीचे या तो दाएं बाएं डिपेंडिंग ऑन की कौन से एक्सिस. इस केस में ऊपर नीचे, तो देयरफॉर ये मिस्टेक होना नहीं चाहिए. ठीक है ना, ये चीज. चलो ओके, नाउ फाइनली लेट मी स्टार्ट. पहले तो कुछ कैलकुलेशन जरूरी है. क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो ग्राफ में पॉइंट्स कैसे प्लॉट. तो पहला कैलकुलेशन है कि अगर याद करके देखो, मैंने बताया था कि अगर h हाइट ऊपर से अगर एक ऑब्जेक्ट को गिराते हो, h हाइट ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट को गिराते हो, तो यहाँ पहुंचने का जो टाइम है वो है √2h/g, और यहाँ पे हिट करने का जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो है √2gh. ठीक है, तो 2h/g, तो 2 × 80/10 यानी 16 का अंडर रूट, यानी 4 सेकंड लगेगा. तो देयरफॉर 4 सेकंड पहुंचने में, और अब क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, यानी 4 सेकंड पहुंचने में, फिर 4 सेकंड वापस, 4 सेकंड पहुंचने में, 4 सेकंड वापस, 4 सेकंड पहुंचने में, 4 सेकंड वापस. तो 4 करके 4 4 4 4 ये सेकंड्स की बात कर रहा हूं. अब आ जाओ वेलोसिटी हो जाएगा √2gh. तो इन दिस केस तो ये हो गया 4 सेकंड्स, और ये हो जाएगा 2 10 80, तो यानी 1600 यानी 40 मीटर पर सेकंड. यानी समझो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगा, फिर -10 -20 -30 -40, बस एकदम तुरंत +40. यानी समझो 0 से स्टार्ट किया, ड्रॉप किया, तो 1 सेकंड बाद -10, 1 सेकंड बाद -20, उसके 1 सेकंड बाद -30, उसके 1 सेकंड बाद -40, 4 सेकंड का जर्नी है, और उसके तुरंत बाद +40 एकदम से आइडियल कोलिजन. फिर +40 के बाद उसके 1 सेकंड बाद +30, +20, +10, 0, यानी अब फिर वापस उसी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है 80 मीटर्स अबव द ग्राउंड. फिर वापस -10, -20, -30, -40, एकदम से +40. तो दिस इज व्हाट द टिपिकल नेचर ऑफ वेलोसिटी विल. और स्पीड तो खैर कभी माइनस हो नहीं पाएगा, तो इन्हीं के मॉड लगा दो. यानी स्पीड का क्या होगा, 0 10 20 30 40, है ना, 0 से स्टार्ट होगा, फिर 10 20 30 40, फिर 30 20 10 0, फिर 10 20 30 40, फिर 30 20 10 0. स्पीड तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो जब वो ऊपर जाए नीचे जाए, स्पीड तो उसी तरीके से वेरी करे. जहां तक डिस्टेंस की बात है, 80 160 240 320 400 480, डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ता जाए. हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, क्योंकि हर बार 80 80 जैसे से कवर करेंगे तो 80 80 ऐड होता जाएगा. तो दैट्स हाउ टिपिकल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी है एवरी 4 सेकंड्स. तो 4 सेकंड में 80, उसके 4 सेकंड बाद 160 160, फिर 240 आफ्टर अनदर 4 सेकंड्स, 320 आफ्टर अनदर 4 सेकंड्स, 400 आफ्टर अनदर 4 सेकंड्स, 480 आफ्टर अनदर 4 seconds, and so on. The chain is going to go on. चलो, displacement. Now this is important. Displacement क्या हो रहा है? 0 से स्टार्ट हुआ, -80 at 4 seconds. ध्यान से सुनना, -80 at 4 seconds, फिर 0 at 8 seconds, फिर -80 at 12 seconds, फिर 0 at 16 seconds, and so on. So this is how typically the entire thing is going to behave. So therefore, अब मैं अगर plotting शुरू करता हूं, I think सबसे आसान प्लॉट तो वेलोसिटी का है ना, उसी से स्टार्ट कर. तो 4 सेकंड में वेलोसिटी है -40, तो यहां तक है, और एकदम से +40, तो वेलोसिटी तो इसी रेंज में लाई करेंगे, -40 और +40 के बीच.
ठीक है, 4 सेकंड, और उसके बाद एकदम से +40, फिर 4 सेकंड, उसमें 0, फिर -40, फिर एकदम से 4 सेकंड बाद ये ऐसे। ये 4 सेकंड है, 8 सेकंड, ये 12 सेकंड, ये 16 सेकंड, ये 40 मीटर पर सेकंड, ये -40 मीटर पर सेकंड। तो स्टार्ट 0 से हुआ है और -40 तक गया, ये देखो, फिर एकदम से +40, फिर 0, फिर -40, फिर एकदम से +40, फिर 0, फिर -40, इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस चलेगा। और इस बार जंप है, ब्रेक है, सडन चेंज है। कैसे? ये देखो, 0 से -40 हुआ और एकदम से हो गया +40 तुरंत। दैट्स हाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ तो बनाना बहुत आसान है। स्पीड टाइम में क्या होगा? स्पीड टाइम, अच्छा स्पीड टाइम मैंने दिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ, ठीक है ना। तो स्पीड टाइम अगर बनाओगे यानी L डॉट टी, तो क्या होगा? ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना दो, तो याद, और ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। और ये तो ऑब्वियसली 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 16 सेकंड, ये तो अपने आप देखिए, है ना, 20 सेकंड, 24 सेकंड, स्पीड टाइम तक आ गया। चलो ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहीं तक पहुंचे हैं, एंड दैट इज वी हैव ओनली ड्रॉन दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैसे हमने डिस्कशन का तो एक पर्सपेक्टिव तो बना लिया, एक बैकग्राउंड तो बना लिया। सो व्हाट आई वुड नाउ सजेस्ट इज दैट फिर इसको भी एज ए होमवर्क रखें। कल जो है ना हम लोग इसी को डिस्कशन करके या इसी पॉइंट को डिस्कस करके स्टार्ट करें, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग। So therefore for tomorrow, 2 homework now, one more gets added, तो इसको भी एज ए होमवर्क रख लो और बनाओ, ठीक है ना। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैंने 2 होमवर्क दिया, आई थिंक एक शायद U पॉजिटिव और A नेगेटिव का दिया शायद, और एक बाउंसिंग बॉल का। VT ग्राफ तो हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, लेकिन बाकी रहता है, तो बाकी को जो है लोग अब कल डिस्कस। फाइन, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर, है ना। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे एंड कंप्लीट द होमवर्क। अच्छा हाँ, अब तो वीकेंड है, यानी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से बनाओ। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे एंड एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।